Now we will discuss FFT algorithm development. In the previous slide, we discussed about butterfly structure. So for 2-point DFT, now we will find a butterfly structure, a generalized butterfly structure for n-point DFT in a n-point DFT. So this is formula for n-point DFT calculation. So this is I will call n-point DFT summation. N-point DFT summation can be written as a weighted sum of two n by 2 point DFT as this. Okay. Actually, we have divided x of into even index samples and odd index samples. And this even index sample can be written as x of 2n x of 2n, and odd index sample can be x of 2n plus 1. Okay. In this case, we are discussing radix to decimate in time FFT algorithm development. So n is even number and power of 2. So if n is equal to 2 power v is an integer, so n is an even number and power of 2. So we can break n-point DFT summation into weighted sum of 2n by 2 point DFT summations. Okay, like this. So this x of n denote the even index samples. This x of 2n plus 1 denote odd index samples, and this is sum of 2. We have n-point DFT summation by we are dividing 2 summation n by 2 point DFT summations. ओके, तो आपका क्या होगा, जो यहां पे आप देखेंगे जो n चेंज आप वेरिएबल करेंगे, क्योंकि हमने n को 2n से रिप्लेस किया है, तो इस n by 2 पॉइंट DFT समेशन को में n को रिप्लेस करेंगे 2n से, और दिस आल्सो चेंज दिस. सिमिलरली यहां पे आपने रिप्लेस किया है n को 2n plus 1, so here also you have to replace n 2n plus 1. ओके, अब क्या होगा, I can write this x of 2n is even index signal denote, this can be x subscript O of n denote the odd index samples.
ओके। अब क्या होगा कि ये लिमिट आपको पता है n/2 - 1। अब क्या होगा कि इस w n पे पावर k इंटू 2n + 1 को दो टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, wn पावर k इंटू 2n इंटू wn पावर k, और इसको हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये जो समेशन है, दिस समेशन एंड दिस समेशन तो ये आपको दिख रहा है n/2 पॉइंट DFT सम, यहाँ पे DFT सम्स। ओके, n/2 DFT सम्स। ओके, कंपेयर करोगे n पॉइंट DFT सम से। ओके, और ये जो टर्म है वेटिंग फैक्टर है दो समेशन, तो इनका स्ट्रक्चर जब देखोगे, दिस टू आर identical, two are identicals। ओके, ओनली इवन इंडेक्स सैंपल्स के बेस पे इस समेशन को करना हो, इसको इवन इंडेक्स बेस, इसको ऑड इंडेक्स बेस, और जो ये आपका nth रूट यूनिटी है सेम कॉमन फैक्टर है। ओके, अब इन दोनों स्ट्रक्चर को इस wn पावर k स्ट्रक्चर के वेटिंग सम से ऐड कर देना है टू कैलकुलेट n पॉइंट DFT सम। ओके, नोट डाउन दिस wn पावर k is a Tweedle factor, is a Tweedle फैक्टर या फेज फैक्टर। ओके, और wn पावर k इज पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल N। ओके, nth रूट यूनिटी। अब क्या होगा कि ये जो टर्म wn पावर k इंटू wn पावर k इंटू 2n कैन बी written like this, k इंटू 2n। ओके, मैनिपुलेट करोगे तो आप इसको लिख सकते हैं e पावर -j 2 पाई n/2 इंटू k इंटू n। So e power -j 2 pi n/2 power k into n can be written as wn/2 into power k into n। ओके, तो इसका जो पीरियड है w सबस्क्रिप्ट n/2 power k into n is a periodic with period n/2। okay, let us take n is equal to 8। अब क्या होगा, for n is equal to 8, so
आपके पास जो पहला होगा कि 8 पॉइंट डीएफटी ले सकते हो। ओके, ई पावर नहीं डब्ल्यू एन पावर के इंटू एन। ओके, के स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 7। ओके, अब इसको हमने n/2 मीन्स दो 4 पॉइंट डीएफटी विद n/2 पॉइंट डीएफटी सम में ब्रेक कर लेंगे। तो n 8 है तो 4 पॉइंट डीएफटी सम्स में ब्रेक करेंगे 0 3 इवन इंडेक्स w, यहाँ n इजकल टू 8 है तो ये 4 हो जाएगा k इंटू एन प्लस w, ये आपका 8 इंटू k n इक्वल टू 0 to 3 odd index w 4 k into n। ओके, तो आपका ये क्या है 4 पॉइंट इक्विवेलेंट टू 4 पॉइंट डीएफटी सम। ये क्या है, इट इज आल्सो 4 पॉइंट डीएफटी sum for the odd index samples. This is 4 point DFT sum of DFT sum for even index sample. This is 4 point DFT sum for odd index samples. So this is point DFT sum for 8 point signal x of n। तो हमने क्या किया 8 point DFT sum for signal xn we have broken into two 4 point DFT sum for even index sample। okay, w, and this is w 8 power k denote Tweedle factor या weighting coefficient। Tweedle factor, this is another 4 point DFT sum for odd index samples। ओके, हमने क्या किया कि जो 8 पॉइंट डीएफटी सम था उसको दो 4 पॉइंट डीएफटी सम में ब्रेक कर दिया। और तो आप इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि आपने दीज आर even index samples of
x of n. These are odd index sample of x of n. अब इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या करोगे, 4 पॉइंट DFT कैलकुलेट किया, ओके, फॉर इवन इंडेक्स सैंपल और ऑड इंडेक्स सैंपल को, और उनको इस कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया, ओके, and then we'll get corresponding, these are 8 point DFT values of x of n. अब इसमें हम एक स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसा दिखे। अब जो वेटिंग कोफिशिएंट है आप देखिए k इक्वल टू 1 to 7 के corresponding this middle factor are weighting coefficient. Weighting coefficient क्या क्या आपके, so k इक्वल टू 0 आपका वेटिंग कोफिशिएंट w 8 पावर 0 1 w 8 पावर 1 up to k is equal to 7 w 8 पावर 7, ओके। ऐसे सम करके आप इसमें देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ये रेड वाले को इस रेड वाले से देखिए, एक ऐसी लाइन जा रही है, एक ऐसी लाइन जा रही है, एक ऐसी लाइन जा रही है, एक ऐसी लाइन आ रही है और एक ऐसी लाइन आ रही है। सिमिलरली ब्लू वन के करस्पॉन्डिंग देखोगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी जा रही है, फिर दूसरे ब्लू ये ऐसी लाइन जा रही है, फिर एक ब्लू स्लैंटिंग लाइन है, ये भी एक ब्लू स्लैंटिंग लाइन है, ओके। इसी के करस्पॉन्डिंग ग्रीन के करस्पॉन्डिंग भी देखोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लीपिंग लाइन है, एक और हॉरिजॉन्टल या स्लीपिंग लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है हॉरिजॉन्टल करस्पॉन्डिंग, ये फिर ब्लैक के करस्पॉन्डिंग, इस तरह के सब एक स्ट्रक्चर फॉलो होगा टू कैलकुलेट द 8 पॉइंट DFT values with the help of 4 point DFT, ओके। अब ये स्ट्रक्चर कॉमन ये होगा, ओके, एक कोई IN होगा इनपुट, IN टू दूसरा इनपुट होगा, तो आउटपुट करस्पॉन्डिंग क्या है आप देख रहे हो कि आप देख रहे थे कि एक फैक्टर इस लाइन के ऊपर ये वाला टर्म है, इस लाइन के ऊपर आपका दिस ये हो गया W6 W8 W, हाँ ये होगा W8 पावर 3 फॉर इस ब्लू लाइन के कारण, ओके। अब इसको जनरलाइज टर्म्स में लिखेंगे, m can value takes value from this to n by 2 minus 1, okay, here 0 n 8 है तो 3, ओके,
W8 power 0, W8 power 1, W8 power 2, W8 power 3. Okay. 4, 3. Black one corresponding to this. ये W8 power 4 corresponding to this one. Okay. ये जो रेड लाइन है इसे corresponding ये है, ये ब्लू लाइन के corresponding ये ब्लू है, ये ग्रीन के corresponding ग्रीन है. ओके. और ये ब्लैक के corresponding ब्लैक है और रेड के corresponding ये रेड है. कलर का यहाँ मीनिंग है. ओके. इस ब्लू के corresponding ये है, इस ग्रीन के corresponding ये है, इस ब्लैक के corresponding ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके. तो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा. इनपुट 1, इनपुट 2, आउटपुट 1 and output 2 with this type of multiplication with the dual fact with nth root of unity Wn power m. Okay. and Wn m plus n by 2. आप देख रहे हो कि W8 power 0 to W8 power 3 है. उसके बाद क्या हो रहा है, आप देखोगे किसी भी स्ट्रक्चर में ये आपका ये है रेड और यहाँ पे क्या है, एक आपने W8 power 0, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग W8 power आपका 0 plus 8 by, so this 8 by 2 is 4. Similarly W8 power 1 के corresponding W8 power 1 plus 4, W8 power 5 and so on. तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने एक ढूंढा. दिस इट इज आल्सो ए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. ओके. सो वी हैव ऑब्टेन ए इनहेरेंट स्ट्रक्चर. 8 पॉइंट DFT को स्मॉलर 8 पॉइंट DFT को 4 पॉइंट DFT में कन्वर्ट करने के बाद हमने एक इनहेरेंट स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया कि इसी तरीके का ऑपरेशन होगा और में आप देखोगे. सो वी हैव टेन इनहेरेंट स्ट्रक्चर. दिस इज, I will call this is inherent structure and this is butterfly structure. अब क्या होगा कि हम जो nth रूट ऑफ यूनिटी की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है पीरियोडिसिटी एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करके इस जो ओरिजिनल बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी. फर्स्ट, periodicity, that Wn power k plus capital N will be Wn power k. This denotes the periodicity property of nth root. Second is symmetry. Symmetry property. If Wn पे power k plus n by 2 will equal to minus Wn power k. ओके. ग्राफिकली इसको n by 2 cos 180 फेज शिफ्ट टाइप का होता है. ओके. अब क्या है कि ये जो Wn पावर 7 है, इट कैन बी रिटन Wn पावर 3 plus 4. ओके. एंड Wn पावर 4 in case of this can be, आप देखो इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या कोई भी जनरलाइज n के लिए. यहाँ पे दिस इज फिगर
here capital N is 8. ओके 8 पॉइंट्स आपने इस सर्किल पे ड्रॉ कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके अब क्या है कि Wn पावर 5 को लिख सकते हैं माइनस Wn पावर 1. ओके Wn पावर 7 को लिख सकते हैं माइनस Wn पावर 3 यूजिंग द सिमेट्री प्रॉपर्टी. ओके क्योंकि यहाँ n/2 4 है तो ये 7 था तो ऐसे लिख सकते हैं. यहां भी इसको भी हम लिख सकते थे Wn 1 plus 4, so that will minus Wn power 4 is equal to इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. ओके k varies from 0 to 1 n/2 minus. ओके तो सिमेट्री प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके ये जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई फॉर 2 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होते थे, ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैं, अब देखो कि इसमें हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं. हम इस मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे. ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये दो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसके कारण माइनस Wn पावर m. ओके अब क्या होगा कि यदि इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यहां पे ले आ दें लाइक दिस एंड हियर विल बी -1. Wn पावर m इज कॉल्ड ट्विडल फैक्टर या फेज फैक्टर. ओके so we can reduce the complex multiplications by just rearranging the ट्विडल फैक्टर्स. पहले यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, एक यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था. ओके जिसके कारण दो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे. ओके एंड दिस इज ट्विडल ऑफ फेज फैक्टर. सो यूजिंग इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई, आपका जो ये पहले वाला था, ये जो हर लाइन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स nth रूट यूनिटी था, nth रूट यूनिटी लाई कर रहा था, अब उसकी जगह सिर्फ 8 की जगह 4 आपके एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा और -1. ओके तो हमने 8 पॉइंट DFT को हमने 4 पॉइंट DFT सम्स में कन्वर्ट कर दिया वेटेड सम में. 8 पॉइंट DFT सम को हमने क्या कर दिया, 8 पॉइंट DFT सम को हमने वेटेड सम ऑफ 4 पॉइंट DFT सम्स. ओके अब इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं. अब क्या है कि इस 4 पॉइंट DFT सम को 2 पॉइंट DFT सम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वेटेड. See that this approach involved 2 point DFT butterfly structure. So for n is equal to 4 कोई भी एक सिग्नल है, Wn
wn पावर हमने कोई एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज 4.k 1 3। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, n इक्वल टू 0 टू this can be n equal to 0 to 1। ये है 2 पॉइंट DFT सम, दिस इज ट्यूडल फैक्टर। if 4 point DFT sum इस तरह ट्यूडल फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि रेडिक्स 2 में n को हम n इक्वल टू 8 को 2 क्रॉस 2, ओके, सो 2 पावर 3 लिख सकते हैं, हियर v इक्वल टू 3। तो हम 3 स्टेज में ब्रेक करेंगे, ओके, और उसका ब्रेक यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो हमने पहले क्या, यहाँ पे ये एक है 4 पॉइंट DFT सम, दिस इज आल्सो ए 4 पॉइंट DFT सम। अब इसको ऐड किया गया है वेटेड सम के द्वारा और हमने ऑब्टेन किया है 8 पॉइंट। ओके, अब क्या है, फॉर ईच 4 पॉइंट DFT सम वी हैव यूज्ड 2 पॉइंट DFT sums, this is 2 point DFT sum, this is 2 point DFT sum. For this 4 point DFT sum we have another 2 point DFT sum, okay। अब एक चीज हो थी कि हमने 4 पॉइंट के लिए इवन ऑड इंडेक्स किया, अब उस इवन ऑड इंडेक्स, इवन इंडेक्स को ही इवन एंड ऑड इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो सपोज यू हैव x of 0, x of 2, x of 4, x of 6, so I can assume x of 0, this is x 1 into 2, x 2 into 2, okay, common factor x 2 into 3, okay, x into 2 cross 1 लिखिए, 2 cross 0 is 0। इनको जब अगेन इसको इवन और ऑड इंडेक्स में ब्रेक करते हैं, सो इवन
इंडेक्स सीक्वेंस होंगे x ऑफ 0 और ये जो फैक्टर 2 है इसमें है, दैट इज corresponding to x of 4. ओके, ऑड इंडेक्स फॉर दिस, ये टोटली इवन इंडेक्स है, उसको भी आप ब्रेक कर रहे हैं, तो इसके जो टर्म्स होंगे x of 2 एंड x of 3. ओके, तो आपके इस 2 पॉइंट एफटी के इवन ये हैं और ये ऑड हैं. ओके, सिमिलरली यू कैन, मैं एक अपने तरीके से बता रहा हूं, यू कैन 3 5. ओके, डिटेल में इसका दिया है, आपको देख लीजिएगा इसमें 3 and 5. वन कॉमन है, this can be written 1 plus 0 can be written 1 plus 2 plus 2. This can be written 1 plus 2 cross 3. Okay, तो यदि इनको इवन ऑड इंडेक्स में हम कन्वर्ट करेंगे, इवन इंडेक्स x of 1, ओके, इसके corresponding दूसरा इवन ये है, so this is x of 5, odd index, okay, this will be ये corresponding है x of 3, ये भी odd है, this is corresponding x of 7. तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं. हमने x of 2n और x of 2n plus 1 फॉर्म में लिखने की कोशिश की. ओके, ब्रेक द इवन एंड ऑड, जनरलाइज. ओके, अब इसका अलग एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, जिसको इन्होंने क्या किया है, इंडिसेस ऑफ इनपुट, जैसे कि इनपुट पे जैसे 8 पॉइंट डीएफटी है, 2 पॉइंट डीएफटी स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की तरह हम एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर रहे हैं. तो n इज इक्वल टू 8 है, तो इसमें कितने स्टेज होंगे, 3 स्टेज होंगे. ओके, और हर स्टेज में एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है. ओके, और उस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर यूज कर एक्सप्लॉइट करेंगे थ्रू आउट दिस 8 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेशंस. अब क्या होगा कि इसको डेसिमेशन इन टाइम क्यों बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है डेसिमेशन टाइम क्यों बोलते हैं, जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट डीएफटी के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए ये आपके सैंपल वैल्यूज हैं. ये सैंपल वैल्यू क्या कर रहे हैं, टाइम, यदि ये टाइम इंडेक्स है, डेसिमेशन मींस एक अल्टरनेट करके हम ले रहे थे. 4, यदि इसको 8 पॉइंट है तो उसको 4 पॉइंट के इवन ऑड इंडेक्स 4 पॉइंट
इवन एंड 4 पॉइंट ऑड में डिवाइड कर रहे हो तो कैसे करेंगे? आप इसको लीव कर रहे हो एक एक। ओके ओके, तो इवन इंडेक्स के लिए आपने x ऑफ 0 चूज किया, x ऑफ 2 चूज किया, x ऑफ 1 छोड़ दिया, यहाँ पे x ऑफ 3 छोड़ दिया, to obtain x of 4 and then x of 6 to leave this x of 5. Similarly, यदि इस सीक्वेंस में तो ये डेसिमेशन इन टाइम, हम क्या है जो इंडेक्स इवन ऑड इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो डेसिमेशन इन टाइम, मतलब एक एक सैंपल छोड़ के रह गए। डेसिमेशन का मतलब चीजें लीव करना, मतलब डेसिमेट कर देना, हटा देना। ओके, तो जब हम इसको 8 पॉइंट डीएफटी को 4 पॉइंट डीएफटी में कर रहे थे तो हमने क्या किया, जो सेम सिग्नल थे उसको डेसिमेट कर दिया इवन एंड ऑड सीक्वेंस में। इवन ऑड सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमेट करना होगा आपको। एक इवन इंडेक्स सैंपल और इवन इंडेक्स वी हैव टू लीव द ऑड इंडेक्स सैंपल, फॉर ऑड इंडेक्स सैंपल वी हैव टू लीव द इवन इंडेक्स सैंपल। ओके, दिस इज dividing the sample into groups. The particular form of DFT is called decimation in time because it was developed by dividing time sample into groups. A group में divide करने के लिए आपको decimate कर रहे हो। This result is that order in which we need to the input signal sample is not sequential. आप देख रहे थे कि input जो sequence है 8 point DFT butterfly structure में, ये sequence same नहीं है। This is x of 0, x of 4, x of 2, x of 6, x of 1, x of 5, x of 3, x of 7। ये ऐसे नहीं कि x of 0, x of 1, x of 2, x of 3 नहीं आप अप्लाई कर रहे हो इस स्ट्रक्चर में कैलकुलेटिंग 8 पॉइंट डीएफटी। इसका अदर एक्सप्लेनेशन, फॉर डेसिमेशन इन टाइम इनपुट आर इन बिट रिवर्स ऑर्डर। ओके, जो आपको डेसिमेशन इन टाइम रेडिक्स टू डेसिमेशन टाइम ऑफ 12 तो इनपुट किस सीक्वेंस में लगना चाहिए कि आपका जो 8 पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस वाइज एक्स ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ 0 टू कैपिटल एक्स ऑफ 7 ऑब्टेन करने के लिए आपको उसका ऑर्डर आपको ध्यान होना। ऑर्डर कैसे, एक तो मैंने पहले ही बताया था कि कैसे, एक बार तो सबसे पहले 8 पॉइंट है उसको 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग इवन ऑड इंडेक्स सैंपल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उस इवन एंड ऑड इंडेक्स सैंपल को अगेन I have to divide even index and odd index using x of 2n, x of 2n plus 1। अब क्या होगा, ये सीक्वेंस होगा आपको इनपुट पे लगाने का। ठीक है, ये सीक्वेंस होगा आपका जो 8 पॉइंट डीएफटी के इनपुट साइड में आपको लगाना होगा। देखिए यही चीज यहाँ पे x of 0, x of 4, x of 2, x of 6, x of 1, x of 5, x of 3, x of 7। ओके, ये सीक्वेंस याद रखना, नहीं तो आप गलत कैलकुलेट कर जाओगे 8 पॉइंट डीएफटी यूजिंग दिस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट्स टू डेसिमेट इन टाइम। ओके, अब इसको उन्होंने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, बिट रिवर्स ऑर्डर। बिट रिवर्स ऑर्डर, यदि इस बिट का बिट रिवर्स ऑर्डर कैसे ऑब्टेन करेंगे, बिट रिवर्सल क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आ देंगे तो आपका हो जाएगा 1 0 1, ये पहले था 1 और ये क्या हो गया 4। ओके, तो जो आपका सीक्वेंस 1 to 7 फॉलो होना चाहिए था उसमें आप देखोगे 1 को 4 और 1 को स्वैप कर दिया गया है पोजीशन वाइज। ओके, सिमिलरली फॉर 0 1 2 के लिए कोई स्वीप नहीं होगा, लेकिन 0 1 1 बिट रिवर्स करेंगे तो इसको इस साइड ले आएंगे। ओके, अब इस साइड ले आने से क्या होगा 1 0 1, ये क्या हो गया 4, एक 5 हो गया, ये क्या था आपका 3 था,
So no, this was फोर्थ हो गया ये, सो ये था 3 विद, सो बिट रिवर्स 3 का था, 3 का बिट रिवर्स किया है इन्होंने, तो ये जो सारी बिट्स रिवर्स करनी होती हैं। ओके, सो आप ऐसे समझ लीजिए। जीरो डबल वन। ओके, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 1 1 0। ओके, इसको इस साइड, इसको यहीं पे, या मतलब इस साइड से इंटर कराएंगे तो एक शिफ्ट ये होगा, फिर इसको इस साइड से इंटर कराएंगे एक शिफ्ट होगा, तो ये ऐसे। ओके, रोटेशन, सॉरी दिस इज 0 0 1, इस साइड से लिखना शुरू करें 1 0। ओके, तो दिस इज 4, दिस इज, इस तरीके से बिट रिवर्सल करके सीक्वेंस डिटरमाइन कर सकते हैं कि इनपुट पे कैसा सीक्वेंस होना चाहिए सैंपल्स का, सैंपल वैल्यूज का, बाय बिट रिवर्स। ओके, या हमने जो एक्सप्लेन किया है उससे भी आप कर सकते हो, यदि आपको वो समझ में आया है। हमने ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करने की कोशिश की है। ओके, इसमें 2 बार आपको करना होगा, एक बार 4 पॉइंट के लिए, ओके, एक बार फिर उस 4 पॉइंट इवन एंड ऑड सीक्वेंस है, फिर उसके अंदर 4 इवन ऑड सीक्वेंस के अंदर भी अगेन इवन एंड ऑड सीक्वेंस में ब्रेक करेंगे, तो इस टाइप का ये है। नहीं तो अदरवाइज यू यूज द बिट रिवर्सल ऑर्डर। ओके,